है, लेकिन थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाता है. द जयदीप फिंडोरिया, everybody knows him. What makes Jaydeep sir so special in this college? And ऋषभ ऋषि, ही इज़ ऑल्सो गुड एंड काम के टाइम पे ही बोलते थे, फालतू की बात नहीं करते थे, फालतू किसी के झगड़े में नहीं पड़ते थे. ओम प्रकाश पांडे, प्यार से हम ओपी बोलते हैं उनको. किसी का अच्छा बुरा सब मुंह पे बोलते हैं, नो बैक बीचिंग. ओम भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट नंबर आपका है. बेस्ट. प्यार से हम उनको भाऊ बोलते हैं, भाई हमारे बड़े. वृंदावन और मथुरा का तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे एंटर कर तो शी इज़ वेरी गुड गर्ल एंड प्योर हार्टेड एंड वेरी काइंड नेचर. डॉट कीप इट अप एंड कीप गोइंग. आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस जर्नी इन कॉलेज डेज. एक दिन अच्छा बनते हैं और दूसरे दिन फिर वही कुछ और बोलते हैं. Hi everyone, welcome or welcome back to the Legal Vibes. This is me Komal and you're watching the Legal Vibes. So this is a series of podcasts and today our guest is my senior. She is a law graduate and she inspired many of us and excellence in law field, Janvi Bagga. Welcome to our podcast. Thank you for coming, Dee. Thank you so much for inviting. Okay, let's start. Yes, sure. How important is it to normalize open conversation about menstruation? Very important to normalize this topic because firstly it is not human made or something else, it is nature. ठीक है, तो उसमें for a girl or for a woman is if she is suffering from that pain through within this days, 1 week or something, तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें फेस करती है, तो उसमें वो ऑलरेडी किसी चीज़ से गुजर रही है. ठीक है, और उसको अगर सामने वाला नॉर्मलाइज नहीं करके ये बोल रहा है कि ओ शी इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन, शी इज़ ऑन हर पीरियड्स, तो शी शुड take these precautions, she should not enter in the temple, should not do this and that and all, तो उसके माइंड में मतलब वो एक घुस जाता है कि ओ दिस इज़ इम्प्योर, कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है. और इफ़ शी इज़ अ चाइल्ड फॉर सेंस कि अगर शी इज़ इन 7th स्टैंडर्ड और समथिंग इन स्टार्टिंग ऑफ हर menstruation, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नॉर्मलाइज, टू गिव comfort to her. I don't know if you know or not, in South there is a ritual celebrated कि अगर if it is her first menstruation, they are celebrating it. It is a रिचुअल कि अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है तो उसकी पूजा की जाती है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉर्मलाइज फर्स्टली बाय अ वुमन ओनली, कि अगर शी इज़ सफरिंग और बिकॉज शी इज़ सफरिंग शी नोज हाउ टू हैंडल अनदर वुमन और अ गर्ल चाइल्ड, कि बेटा इट इज़ ओके, इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नेचुरल, नथिंग टू वरी अबाउट. बट सेकेंडली मेल और मैन ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ अ गर्ल और अ वुमन कि शी इज़ ऑन हर पीरियड एंड टू स्टॉप हर फ्रॉम फॉर एंटरिंग इन टू द टेम्पल. इट शुड बी normalized by the men as well, firstly by the woman and secondly by the men. Talking about girl entering into temple, we already know कि माँ कामाख्या temple which is also worshipped and the puja and all is done by a male priest. Okay, so this thing should be normalized by them itself कि if you are entering it's okay, you are not. In short, this topic should be normalized firstly by women and secondly by men. How mother can teach her boy or a son कि how a girl should be treated, how
how woman should be treated, how her sister should feel comfortable when she is on her periods. This should not be made taboo in the society कि she is suffering from menstruation, she is on her periods, so we should not Let her enter. let her enter, do rituals. A woman who dreams of building her own career, making choices freely and not waiting for anyone approval, how important do you think financially independent in shaping such a woman's life? It is very important to be independent, to make on career and on decisions. Women should be independent. How? Firstly, a woman needs a support, moral support from the family. May it not be a financial, but a moral support is important, because a woman can do anything. Woman can do anything she wants, but she needs a moral support from family, from friends, and from society itself. A woman should be encouraged कि you can grow, you can do. She should not be always depend on male कि भाई ये मेरे लिए कमा के देगा, मैं घर पे काम करूँगी. This thing should be removed from the society कि man is a bread earner and wife is a housekeeper. This thing should be removed. Secondly, woman, talking about men's approval, if a woman is independent, she is liable for everything she does. For example, if she is earning well, if she earns or spend on something which is luxury to make her lifestyle luxury, she spends so much. At that point, she is not liable to answer to her husband or father or be it anyone in the family कि आप कितना खर्चा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, because she earns and she is independent to, it is her choice. I am not saying कि she should spend or do anything which is wrong in the society, which marks कि इसकी वजह से बाकी और को ये हो रहा है कि हाँ ये कर रही है तो मैं क्यों. People should think in a positive way कि she is doing well in the career, so I should also do. Should not take it otherwise. So it is very important to be independent, to If someone wants to prepare for the judiciary or any government examination, what strategy or routine should they follow? Very nice question. As I am also a judiciary aspirant, not recently, but 2 years back I have started and the preparation is going well. In the initial stage when I have started, I was very blank. Ki where should I start from? What should I do? Because in college days or in college, professor or faculty teaches well, but it is important for a judiciary aspirant to think beyond the books, beyond the law books, and think about the practicality as well. So I was very nervous in the initial days कि how would I start my preparation. So I have approached many academy and I didn't liked much. Then I have started my own preparation, reading bare acts, reading textbooks. For self-learning, YouTube plays a very important role. Nowadays, as you know, कि student in college also, after attending the lectures, if they understand or not, at the end they will prepare themselves from the YouTube.
So there are many channels on YouTube as well. Judiciary by PW. On that platform, Shivani Solanki ma'am plays a outstanding role. She trains her student. She is a judge now. She recently passed RJS. Second is Innovative Judiciary, Parul Jain. Also Parul Jain, they plays a very important role for the judiciary aspirant, free of cost. It is available on YouTube. Student can go through that. I myself watch video regularly. Also they provide live updates, current affairs. So there are many channels on YouTube which provides a good knowledge or information, I can say, कि judiciary aspirants can gain their knowledge or enhance their knowledge from that there. Talking about the routine, a student, judiciary aspirant specifically, should read minimum 8 hours a day. And Minimum? Yes, minimum. 8. They should make a proper schedule, a timetable, should follow the routine as per the timetable. Talking about myself, जब से उठो सब अपना रूटीन करके पढ़ने बैठ जाओ, दोपहर तक पढ़ो, फिर ब्रेक लो और फिर वापस से पढ़ने बैठ जाओ, फिर शाम को सीधा ब्रेक लो. ठीक है. आई एम नॉट अ नाइट पर्सन, तो मेरे से रात में पढ़ाई नहीं होती. सो आई स्लीप अर्ली, 10:30, 11. फॉर मी दैट इज़ अर्ली. तो इट इज़ नॉट समथिंग कि यू शुड फोकस ऑन रात भर जग के पढ़ना और उसी में घुस जाना. नहीं भाई, फ्री रहो, मज़े करो. मज़े करते करते प्रिपरेशन भी इम्पॉर्टेंट है. शुड फोकस ऑल्सो, शुड नॉट बी डाइवर्टेड. इनिशियल डेज में मेरे साथ बहुत हुआ था कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चलती है साइड में. फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गया, पर उस सबको साइड करके यू शुड एट द एंड यू शुड फोकस ऑन द गोल, द एम. So this is what it is. Okay. The next question is, since we have been talking a lot about moot court from the beginning of the law school, I wanted to ask, how important is moot court and does it really help in the future? In college days, moot courts are important. It provides you the practical knowledge. It trains you how the courtroom on field works. Moot court, to participate in moot courts and all the competitive, not competitive, to participate in moot court and the competitions which is conducted by the university, it is very important. I myself has participated in moot courts, and it is very important in courtrooms to respect the seniors and to maintain a good relation with everybody, because you never know कि कौन कब हमारे सामने आ जाए, opposite party और है ना. तो it is very important to maintain a healthy relation. Only theoretical knowledge is not enough. Practical knowledge is important as well. In my opinion, only practical knowledge is important. It teaches you how to apply. Practical knowledge is important, but practical knowledge is also important because it teaches you how the theoretical knowledge which you have studied in the college, how to apply it in the courtrooms, in the court. So moot court helps and trains the students in that manner.
During your 5 year of law school, what is the one lesson you have learned from your college life and will always stay with you? The one thing which I have learned is सुनो सबकी करो दिल की. Listen to everyone. Everyone will give you their opinion. You should do this, you should do that. But at the end, do only what you think is right and what you feel कि हाँ ये मेरे को करना चाहिए. Talking about law college journey, I have met many people, friends, juniors, seniors. Some of them are very good, and I met many people in college days. Be it a junior, senior or a faculty member, someone give you a very good advice and someone will tell you opposite of that. You should do this and that. But at the end, it is upon you how you should apply it in your life in this journey in college days. एक दिन अच्छा बनते हैं और दूसरे दिन फिर वही कुछ और बोलते हैं. तो दिस इज़ वन थिंग आई हैव लर्न कि नेवर ट्रस्ट एनीवन. ऑलवेज फॉलो व्हाट योर हार्ट सेज, नॉट माइंड एज वेल. दिमाग की भी नहीं सुनना है. ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट and heart always give you a positive or a right decision कि yes it is right. दिमाग का तो हाना चलता है. But in my previous podcast also I mentioned Jaideep sir name. Yes. And I also want to talk about now what makes Jaideep sir so special in this college, and you are one of his good friend, right? So what makes Jaideep sir so special? The What Jaideep nature? Findoria, everybody knows him. बेटा जूनियर सीनियर, अभी तो उनको मतलब 1 साल हो गया पास आउट हुए, लेकिन द जूनियर फर्स्ट ईयर जो है वो भी उनको जानता है. तो यू ऑलरेडी नो कि हु इज़ ही इज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी. उनकी बात ही अलग है. समवॉट आई कैन से कि हम दोनों थोड़ा नेचर सेम हो सकता है. ही इज़ अ वेरी ट्रू फ्रेंड, वेरी प्योर हार्टेड. मैंने उनके साथ मूड कोर्ट किया है एंड वी वॉन. तो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, लर्निंग न्यू थिंग्स एंड लॉ फ्रॉम हिम. ही टीचेस, वो ऐसा पढ़ाते हैं कि याद रह जाता है. एंड नॉट पढ़ाने वाला पढ़ाने, मस्ती मजाक में कुछ हो गया, बातें हो गई, उसमें लॉ घुसेड़ना. तो फिर वो दिमाग में, अगर बात करें कि एग्ज़ाम के जस्ट एक घंटे पहले की बात करें तो बच्चे आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो वो कैसे दिमाग में घुस जाता है. हमने हमेशा ऐसे ही लॉ पढ़ा है उनके साथ कि पढ़ाते मस्ती मजाक करते लॉ पढ़ा दिया, और वो दिमाग में अभी भी है. तो उनकी मतलब वो एक कह सकते हैं कि इट इज़ अ गुड क्वालिटी कि वो किसी को भी पढ़ा सकते हैं, कैसे भी पढ़ा सकते हैं. एंड ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. ऑल्सो मेरे को मेरे क्लास वाले हमेशा ऐसे बोलते हैं, मतलब दे वे टॉन्टिंग, लिटरली दे टॉन्ट्स मी कि हाँ तू तो हमसे बात ही नहीं करती, जयदीप एंड ग्रुप के साथ बात करती है, उन्हीं के साथ रहती है. यस, आई फील एंड आई विल से प्राउडली कि दे आर माई फ्रेंड्स एंड दैट इज़ माई ग्रुप. क्योंकि वो वाइब ही अलग है, वो लोग ही अलग है. दैट ऑरा एंड दैट एनवायरनमेंट, उनका बैच, नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जयदीप, उनका बैच ही पूरा ऐसा था. बीट ओम प्रकाश पांडे,
Rishabh Rishi, and lots of people, they never treated me as a junior. वो बॉन्ड ही अलग था. हाँ, जब टाइम आया तो सीनियर जूनियर का ऑब्वियसली रिलेशन रहा ही है, बट वो बॉन्ड सीनियर जूनियर का बॉन्ड तब अच्छा बनता है जब आप एक कंपटीशन में, और बॉन्ड तब अच्छा बनता है जब आप इंटरेक्ट करो, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में एक साथ पार्टिसिपेट करो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ गुड रिलेशन विथ योर सीनियर एंड जूनियर एज वेल, कि कहाँ कौन कब काम आ जाए, यू नेवर नो. सो दैट बैच is very close to my heart, and As a law student, our journey is much longer compared to other graduates, and when we stay away from home during this long phase, our friendship become our support system, our survival, something even our family. How do you personally build meaningful friendship in such a journey, and could you share some memorable experience about the role of your friends in your life, some moments, some memories? Very interesting question. Living far away from the family, I have spent my 5 years in hostel. तो मेरे लिए तो बहुत टफ था, एंड स्पेशली द लास्ट ईयर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, कि एक वो पीक हो गया था कि अब घर जाना है, अब नहीं हो रहा. लेकिन you need to learn here only and that only, how to survive, how to adjust in the I have adjust, my god, डाउनफॉल था. बहुत गंदा था हॉस्टल का एक्सपीरियंस मेरा. मैंने 5 साल हॉस्टल में गुजारे. आई थिंक 40 रूममेट्स के साथ मैं रही हूँ, डिफरेंट, क्योंकि हर साल 3-4 लड़कियाँ चेंज होती है. हर साल 3 साल में एक हॉस्टल में, दूसरे 2 साल में किसी और हॉस्टल में. तो ऐसे करके मैंने 40 अलग अलग रूममेट्स के साथ रूम शेयर किया है. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि सबका नेचर अलग होता है, सबका वाइब अलग होता है. तो एडजस्ट इन दैट प्लेस is very important, difficult. You need to learn. It is a learning process, and in that time you need to make a good friend who understands you, who give a moral support. मैंने I have made many friends, but the friends which I am in contact with is only 3 to 4. At the end खाली 3-4 ही बचते हैं, है ना. तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बात करना ज़रूरी है, कि मतलब इन टच रहो, बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जैसे पहला था वैसे ही अभी रहे. हाँ, चेंजेस आते हैं ऑब्वियसली, बट लास्ट में तो 2-3 ही बचते हैं. बहुत सारे, मतलब पूरा ग्रुप हुआ करता था, उसमें से 2-3 हैं अभी अच्छे वाले हैं, और आई होप ऐसा ही रहे. तो दिस इज़ एंड एक मेमोरीज अगर आप शेयर करना चाहो आपके फ्रेंड्स के साथ के, तो अब क्या करो? मेमोरीज तो बहुत सारी है. कोई एक जो आपके एकदम हॉस्टल में भी इतनी सारी, हाँ, कॉलेज में भी इतनी सारी है, ऑफ कैंपस भी इतनी सारी है. बहुत हम लोग ने, मतलब टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, तो मेरे ट्रिप भी किए हैं. मेरे फ्रेंड्स मोस्टली सीनियर्स ही रहे हैं, तो उनके साथ ट्रिप्स पे जाना, डिनर पे जाना, मस्ती मज़ाक करना बहुत हुआ है. सो दैट इज़ वेरी मेमोरेबल, कि हाँ ऐसे
मोमेंट्स हमने साथ स्पेंड किए। हम लोग साथ में गए मथुरा वृंदावन, अ वेरी गुड प्लेस टू विज़िट। वहाँ एंटर करते ही एकदम पॉजिटिव है। और हम तो गए थे जन्माष्टमी पे, क्या मज़ा आया था, बहुत मज़ा आया था। फिर बहुत अलग अलग जगह गए हम लोग। मेरे ये जो 2-3 फ्रेंड्स हैं, इवन माई फैमिली नोज़ देम पर्सनली, कि हाँ ये नाम से जानते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी कि उनके साथ फैमिली हमेशा मेरे को परमिशन दे देती है। अगर कौन किसके साथ जा रहे हो, हाँ इसके साथ जा रहे हो, अच्छा ठीक है जाओ जाओ। तो मेकिंग दैट टाइप ऑफ फ्रेंड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड गेटिंग मॉरल सपोर्ट फ्रॉम देम। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, एक कॉल घुमाओ और दिल हल्का हो जाता है। तो ऐसे फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ टाइम रहे, चाहे आपकी बात हो ना हो, लेकिन महीने में अगर एक बार बात हो तो सुकून मिले, ऐसे दोस्त होने चाहिए। Okay. The next question is, many of us go through deep emotional wounds and betrayal, not physical pain, but the kind that hurt mentally and make it hard to focus on our goals, daily works or studies. Often people don't even have anyone to share their feelings. Do you think that time will heal everything and fall into their place? If yes, then how much time? And if no, what can we do instead? We can face reality or try to ignore it. Oh my God, what a question. Very relatable question for me. As I earlier said, कि the hostel life was very difficult for me, क्योंकि it gives you a mental trauma. हमेशा मतलब सब सेम नहीं होते, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, किसी से बनती है किसी से नहीं बनती है। तो आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन माई हॉस्टल, लेकिन ठीक है, समय के साथ सब एडजस्ट कर लिया। टॉकिंग अबाउट कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे मेंटल ट्रॉमा वगैरह आई हैव गॉन थ्रू, बट एट द एंड येस, टाइम विल हील। एंड आई हैव ऑल्सो केम आउट फ्रॉम दैट फेज जहाँ पे खुद से कुछ नहीं किया, सब टाइम पे छोड़ दिया कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, और आज ठीक हो गया है। बट दैट फेज एंड दैट सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सब भूल जाते हो कि यू आर मिसगाइडेड एंड यू आर ऑफ द ट्रैक, कि ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है। दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है कि फिर खुद की क्रेडिबिलिटी पे डाउट होने लगता है कि ये मेरे से होगा नहीं होगा। आई एम वर्दी इनफ और नॉट। वो होता है, लेकिन थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाता है। टॉकिंग अबाउट द टाइम, इट इज़ नॉट सर्टेन, कि इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड देयर मेंटल कैपेसिटी, कि कितना वो टाइम लेगा हील होने में। सबका अलग अलग होता है, एंड यू शुड ऑलवेज लीव ऑन द टाइम कि ठीक है सब ठीक हो जाएगा, एंड इट विल बी ऑल राइट एट द एंड। सब ठीक हो ही जाता है, और अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर वो एंड ही नहीं है। When we form any relationship or bond, no matter how much we are told or how much we already know that we should give without expecting anything in return, but we still end up expecting. How does this happen,
and what could be the solution in your opinion? फर्स्टली मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट करती हूँ। सो इट इज़ नॉट दैट थिंग कि बिल्कुल ही एक्सपेक्ट मत करो। हाँ, होती है एक्सपेक्टेशंस, लेकिन फिर धीरे 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 करके उसको कम करते जाओ, फिर एक टाइम आएगा कि एक्सपेक्टेशंस ख़त्म ही हो जाएगी। तो बीट एनी रिलेशन, फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, एट द एंड खुद के बारे में सोचो, एट द एंड दिल की सुनो। तो एक्सपेक्टेशंस, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग टू एक्सपेक्ट। वो ह्यूमन, इट हर्ट्स समटाइम। हाँ, इट हर्ट्स, बट हर्ट तभी होता है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन ठीक है, इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी, नेचर बाय डिफ़ॉल्ट भगवान ने ऐसे बनाया। स्पेशली वुमन एंड गर्ल्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीवन, और उसमें उनकी गलती नहीं है। एक्सपेक्टेशंस होती है, बट अब क्या कर सकते हैं। Like you mentioned, you gone on a trip Mathura. What's the vibe there? And if anybody is traumatized, mentally disturbed, how does spiritually that person can heal from the things they? I believe a lot in spirituality. मेरे घर पे मंदिर है, सो सुबह शाम पूजा पाठ, इट हेल्प्स अ लॉट। पॉजिटिव वाइब जो मिलती है उससे दिमाग शांत रहता है। लेकिन हाँ, थोड़े बहुत जो नेगेटिव वाइब्स की वजह से जो दिमाग में गलत गलत थॉट्स आते हैं, जो पूजा पाठ करने से एक शांति मिलती है, वो वाइब ऐसी होती है कि भरोसा मिलता है कि हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एंड आई तो बिलीव अ लॉट इन स्पिरिचुअल एंड पूजा पाठ घर पे करो। वृंदावन और मथुरा का क्या vibe था? क्या experience का था? तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि वहाँ पे एंटर करते ही होता है ना, पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। सब राधे 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 राधे। और वहाँ की स्पेशली व्हेन वी वेंट ऑन जन्माष्टमी, तो उसका तो वाइब ही अलग था। सब को फेल कर दिया था उस जगह ने। हाँ, वी वेंट फॉर गोवर्धन ट्रैक ऑल्सो, गोवर्धन परिक्रमा। तो पूरी रात जो हमने परिक्रमा करी, उसकी भी एनर्जी इतनी पॉजिटिव थी, और जो थक बहुत गए थे लेकिन हाँ, जो मज़ा आया था वो अलग एक्सपीरियंस था। और ऐसी सारी जगह पे ना बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, एनर्जी होती है, वेर यू, इफ़ यू डोंट बिलीव, यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन द वाइब, एनर्जी। और एंड आई एम नॉट टेलिंग अबाउट अ स्पेसिफिक गॉड और गॉडेस, कहीं पे भी आप चले जाओ, उनकी एनर्जी होती ही होती है। सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो बिलीव करता है नहीं करता है, वो अलग बात है। लेकिन एनर्जी और वाइब तो होती है, कोई तो एनर्जी होती है जो हमको ज़िंदा रखती है। तो दैट्स ओके। Let's wrap up with the last question. That one message do you want to give your junior? Junior, maintain a good relation with your seniors, also with your juniors. फैकल्टी से भी अच्छी बॉन्ड बना के रखो, बट एज पर माई एक्सपीरियंस, योर सीनियर एंड जूनियर विल हेल्प यू फॉर श्योर। फैकल्टी तो बदलती रहती है, आज कोई और है, नॉट इन दैट सेंस, आज कोई और है, कल कोई और होगा। तो हाँ, फैकल्टी मेरे फर्स्ट सेकेंड ईयर में जिम्मी सर करके थे, ही वॉज अ वेरी गुड प्रोफेसर। तो उनसे मेरी आज भी बात होती है। सो कोई भी कुछ भी, मतलब अगर डाउट हो ना हो, उनसे बात करके पूछते हैं कि हाँ कैसा चल रहा है, कैसे चल रहा है। ही इज़ इन नागपुर राइट नाउ। तो
teachers and faculties like him are Like we have Millie ma'am and Gagneet sir. A lot of faculty, Millie ma'am, Gagneet sir, Ayush Kalpesh sir, sir. Kalpesh sir, lots of teacher. मेरा बॉन्ड तो उनके साथ बहुत अच्छा था, अच्छा है. कोई भी काम हो, कुछ भी हो, बात करनी हो तो कभी मतलब ऐसे लेफ्ट आउट फील नहीं करते कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है. और जूनियर स्पेशली शुड लर्न, मतलब डिपेंड ऑन अस. मैं भी इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं भी इंट्रोवर्ट ही हूँ, बट मेंटेन गुड रिलेशन विथ योर सीनियर एंड जूनियर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एज वेल. यू नेवर नो कि कहाँ पे कब कौन काम आ जाए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो विथ योर बैचमेट्स. हाँ ठीक है, मेरे बैचमेट्स अगर देख रहे हैं तो मेरी इतनी किसी से बात नहीं हुई, बट आपकी हाँ ठीक है. बैच में आपकी किससे बनती थी? लाइक बनती तो सबसे बनती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यस सरिता, मतलब अगर मेरे को क्लास में अगर रहना है, मैं किसी से बात करती हूँ तो है आशीष, सरिता, अंबालिका, अभय, मतलब बहुत सारे ऐसे, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी मेरे साथ इन कांटेक्ट है. तो सबसे मेंटेन करो, रिलेशन अच्छे बनाओ. इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमको कैसे लेना है. लोग तो बहुत सारे मिलेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, बट एट द एंड डिपेंड्स ऑन यू. स्पेशली इन माई केस, my seniors helped me a lot, academics में also, and friendship में तो obviously they are my friends, तो ठीक वो तो है ही, but वो आगे जाके बहुत काम लगता है. उनसे जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि विथ योर बैचमेट वी आर ऑन इक्वल, ठीक है, और विथ जूनियर तो फिर वो अभी तो स्टार्ट ही उनका, तो सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है. यही है कि जूनियर्स को मैं यही बोलूँगी कि मेंटेन अ गुड रिलेशन विथ योर सीनियर्स, रिस्पेक्ट देम एज वी हैव रिस्पेक्टेड, एज आई हैव रिस्पेक्टेड माई सीनियर्स. मैं आज भी मतलब कुछ भी हो सबसे पहले उन्हीं के पास जाती हूँ, उनसे ही बात होती है मेरी, तो ठीक है. सो क्वालिटीज़ ऑफ योर सीनियर्स. टॉकिंग अबाउट जयदीप, तो जयदीप के बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ. नेक्स्ट प्रियांक, प्यार से हम उनको भाऊ बोलते हैं, भाई हमारे बड़े भाई. तो ही इज़ वेरी जॉली पर्सन, कि उनकी सबसे बनती है. तो आई हैव ट्राइड कि मैं उनकी तरह, मतलब ये एक उनका पॉजिटिव पॉइंट ग्रैब्स करूं और मैं वो अप्लाई करूं कि सबसे अच्छी बना के रखे. लेकिन ठीक है, वो मेरा नेचर नहीं है, कभी कभी गलती हो जाती है, बट ही इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन कि अगर आज आपके साथ वो बात करेंगे तो आपको भी इतना कंफर्टेबल और इतना फ्रेंडली फील होगा आपको उनके साथ. तो ही इज़ वेरी जॉली पर्सन. एंड वो मेरे घर पे भी आ चुके हैं और हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है. तो वेरी प्योर हार्टेड. Talking about Rishabh Rishi, he is also good in sports, तो and he is a swimmer as well. तो वो भी मतलब इतना एक्सट्रोवर्ट तो नहीं थे, इंट्रोवर्ट ही थे, लेकिन हाँ उनकी वाइब अलग थी. वो काम के टाइम पे ही बोलते थे, फालतू की बात नहीं करते थे, फालतू किसी के झगड़े में नहीं पड़ते थे. तो हाँ, ही इज़ दैट काइंड ऑफ. एंड टॉकिंग अबाउट ओम प्रकाश पांडे, प्यार से हम ओपी बोलते हैं उनको. तो ही इज़ मुंह पे बोलने वाला इंसान, किसी का अच्छा बुरा सब मुंह पे बोलते हैं, नो बैक बीचिंग.
अगर उनको बुरा लग रहा है तो बुरा बोलेंगे, किसी को मतलब बटरिंग नहीं करेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उनसे बात करे ना करे, मैं तो भाई अपनी मस्ती में हूँ, मैं अपने से जीऊँगा। और उनकी थिंकिंग ही अलग है पूरी। वो मतलब जहाँ तक मैंने उनको समझा है, एंड एज फार एज आई नो हिम, तो ही इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, डिफरेंट पर्सनालिटी। अभी वो अपनी फील्ड में प्रैक्टिस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड एक कॉल करो तो हमेशा हाजिर होते हैं। कोई भी बात करो, कुछ भी बात करो, कोई भी टॉपिक पे, एंड ही इज़ वेरी गुड इन लॉ। तो अपनी फील्ड में तो वो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन ज्ञान भी बहुत अच्छा देते हैं। मेरे जज बने थे जब मैंने मूड कोर्ट किया था। ओम भैया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट नंबर आपका है। ऑल द बेस्ट। मैं नहीं जानती कुछ, अभी आपको नेक्स्ट आपको ही पॉडकास्ट बनाना पड़ेगा। नहीं, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। मतलब है ऐसे दोस्त जो आफ्टर योर कॉलेज लाइफ भी जिनसे आप बात कर सकते हो, जिनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। तो यही सारे लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में हमेशा हाजिर रहते हैं। एंड व्हाट एल्स वी नीड, वी वांट दैट ओनली कि कोई मेरा सुन लो भाई। चाहे वो आप सुनो नहीं सुनो, लेकिन मैं हूँ वो, हाँ वो होते हैं प्रेजेंट की वो मोमेंट में। जो हमको एक पर्सन चाहिए होता है कि हमारी सुने, वो ये लोग सुनते हैं। एंड कुछ गलत है तो गलती बताते हैं, कुछ सही है तो अप्रिशिएट भी करते हैं। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड यही सारे जो मेरे दोस्त आप लोग देख रहे हो, आई मिस यू, एंड आई होप कि हम जल्दी मिले। हाँ, एंड okay. Previously, Sally ma'am told me that Komal, whenever you make any podcast, just sit with your guest and tell them to give a feedback for you. So give a feedback for me. Okay. She is doing a very good job starting career in this field, which will help her, which will help you to how to interact with people. And I don't know if you are introvert extrovert. So if you are introvert, you will get confidence कि कैसे किसके साथ क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, एंड विच विल हेल्प इन योर लॉ एज वेल कि गेस्ट के साथ कैसे बात करनी है। शी इज़ अभी रिसेंटली जब बात हो रही थी कि हम पॉडकास्ट करेंगे, तो बिफोर दैट हमारी हार्डली कुछ बात हुई होगी। हाँ, हमने कॉम्पिटिशन्स भी करे हैं, इवेंट्स में भी हम लोग थे, एसपीसी हमने करा है। तो शी वॉज इन माई कमिटी, मूट मैनेजर। तो शी इज़ वेरी गुड गर्ल एंड प्योर हार्टेड एंड वेरी काइंड नेचर। तो यही सब आगे काम आता है। बाकी झगड़ा तो हर कोई करता है, लोग तो प्यार के भूखे होते हैं। तो दिस विल हेल्प you a lot. Keep it up and keep going. Thank you so much. Welcome. I hope you enjoy this video and get some knowledge from this video. So see you in the next video. Until then, keep liking, keep supporting the Legal Vibes. Wait for the next podcast. See you soon.